Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 28 एंड 29 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा. चलिए स्टार्ट करें. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एशिया का लार्जेस्ट इवेंट ऑन सिविल एविएशन अभी कहाँ पर हुआ. इसका नाम क्या था? विंग्स इंडिया. 2024 में हुआ अभी रिसेंटली विंग्स इंडिया, जो कि एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट था. क्वेश्चन आ जाता है कि कहां पर हुआ था. लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है. हैदराबाद तेलंगाना में हमें इसे देखने को मिला. हैदराबाद तेलंगाना में भी कहां पर हुआ था? एट बेगमपेट एयरपोर्ट. कहां पर है? हैदराबाद तेलंगाना में. 18 से 21 जनवरी के बीच में हमें ये इवेंट देखने को मिला. एंड इसी की फिर एक थीम याद आप सभी को रखनी है, वो है कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृतकाल, सेटिंग द स्टेज फॉर इंडिया सिविल एविएशन एट द रेट ऑफ 2047. ठीक, फिर ये तो हो गई हमारे विंग्स इंडिया की बात. अब इसके दौरान कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखेंगे जो अनाउंसमेंट की गई. जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहली रिलीज ऑफ द जॉइंट नॉलेज पेपर ऑन सिविल एविएशन बाय फिकी एंड केपीएमजी के द्वारा मिलकर इसको रिलीज किया गया. उड़ान 5.3 को यहाँ पे लॉन्च किया गया. देन फिक्की ने अनाउंस किया देयर 4th एडिशन ऑफ द विंग्स इंडिया अवार्ड्स इन द सिविल एविएशन सेक्टर. ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे. देन इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट सीट, इसको लॉन्च किया गया एट विंग्स इंडिया 2024. राइट, ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स मार्क करेंगे इसको. नेक्स्ट, पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया प्रोजेक्ट्स वर्थ 19,100 करोड़ रुपीस. कहाँ पर? ये बुलंदशहर यूपी में किया गया. इसी के साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट्स देखें, जैसे फॉर एग्जांपल एक न्यू खुर्जा एंड न्यू रेवाड़ी के बीच में एक 173 किलोमीटर लॉन्ग इलेक्ट्रिक लाइन को यहाँ पे लॉन्च किया गया. फिर इसी के साथ साथ हम देखेंगे मथुरा और पलवल के बीच में भी एक रेल लाइन को लॉन्च किया गया. इसी के अलावा फिर देखें एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने की बात की जा रही है. कहाँ पर? ग्रेनो में. ग्रेनो क्या है? ग्रेटर नोएडा एरिया, राइट, जो कि आपका यूपी में है. राइट, इसको यहाँ इसी में ग्रेटर नोएडा में ही एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप सेटअप करने की बात की जा रही है. एंड ये जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप होगी ना, 1714 करोड़ रुपए की लागत से बिल्ड की जाएगी. 747 एकर्स ऑफ लैंड पे इसको बिल्ड किया जाएगा. राइट, मार्क करेंगे इसको. फिर इसी के अलावा एक और प्रोजेक्ट याद रखेंगे, वो था आपका मथुरा सीवेज स्कीम. मथुरा सीवेज स्कीम, राइट, ये मथुरा सीवेज स्कीम अभी बेसिकली याद रखेंगे, इसको रिवैम्प किया गया, रिनोवेट किया गया. एंड यहाँ पर 460 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए ताकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को बनाया जा सके. नेक्स्ट,
नेक्स्ट आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड लेडी अर्बन कॉलेज दिल्ली। इन्होंने अभी एक एमओयू रिन्यू किया अपना फॉर रोशनी स्कीम फॉर हाउ मेनी ईयर्स। तो 5 साल के लिए ये एमओयू को यहाँ पे रिन्यू किया गया है। फिर अब आ जाती है ये रोशनी स्कीम। ये रोशनी CWCSA, ये क्या सबसे डब्ल्यू रोशनी तो हम देख चुके हैं। CWCSA क्या है? सेंटर ऑफ वीमेंस कलेक्टिव्स लेड सोशल एक्शन। इसके अंडर लोगों को यहाँ पे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर फूड को बढ़ावा देने के लिए फूड अच्छा प्रोवाइड हो सके, न्यूट्रिशन अच्छा लोगों को जा सके, उनकी सैनिटेशन के ऊपर वो बात की जाएगी, उनके वॉश के ऊपर बात की जाएगी। वॉश नहाना नहीं है यहाँ पर, वॉश का मतलब है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। करेक्ट। डे NRLM इसके साथ यहाँ पर टाई अप करके रोशनी ने लोगों को हेल्प करने की बात की गई। एंड जो लोग पॉवर्टी रिस्ट्रिक्शन है, जो पॉवर्टी स्ट्रिक्ट लोग हैं, जो पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, उनको पॉवर्टी से एलिवेट करके बाहर निकालने की बात की गई। तो यहाँ पे लोगों को स्किल्स भी प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि वो एजुकेट हो सके, ट्रेंड हो सके, एंड जब भी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी उनके लिए आती है तो उसको वो ग्रैब कर सके। फिर यहीं पे याद रखेंगे जो रोशनी CWSA है, इसको फाइनेंशियली हेल्प कौन कर रहा है, मतलब वैसे तो लगते हैं किसी भी स्कीम को चलाने के लिए, तो इसको फंड कौन कर रहा है? तो वो फंड किया जा रहा है यूनिसेफ के द्वारा। ठीक है, तो याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लेडी अर्बन कॉलेज के साथ मिलकर 5 साल के लिए इस एमओयू को रिन्यू किया फॉर रोशनी CWCSA। एंड यहाँ पर डे NRLM के साथ मिलकर रूरल एरियाज में वॉश, फूड, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, इसके ऊपर वर्क किया जाएगा। एंड यहीं पर जो फाइनेंस कौन कर रहा है इस रोशनी स्कीम को, या फाइनेंस पार्टनर कौन रहेगा? तो वो है यूनिसेफ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर हम बात करते हैं 54th एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहां पर हुई। इसी को हम डेवोस समिट के नाम से भी जानते हैं। तो डेवोस से तो नाम समझ गए आप, डेवोस स्विट्जरलैंड में हमें ये देखने को मिली 54th एडिशन ऑफ द डेवोस समिट या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट। फिर यहीं पर एक थीम रहेगी। ये थीम क्या थी इस समिट की जो ये 54th एडिशन था? ये थी रीबिल्डिंग ट्रस्ट, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। फिर यहीं पे याद रखेंगे 15 से लेके 19 जनवरी के बीच में हुई थी ये। एंड ये जो डेवोस में हुई थी ना, डेवोस में भी ये कहां पर हुई अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये हुई थी स्विस एल्पाइन स्कूल में, जो कि डेवोस स्विट्जरलैंड में। ठीक है। फिर ये जो इंडिया की इंडिया ने इन पार्टनरशिप विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी ये लॉन्च किया। बेसिकली जो वीमेन हेल्थ है, वीमेन एजुकेशन है, वीमेन की जॉब अपॉर्चुनिटीज है, उनको एंकरेज करने की बात की गई ताकि बेस्ट प्रैक्टिसेस, नॉलेज शेयरिंग हो सके, इन्वेस्टमेंट हो सके, ताकि वीमेन्स को भी हम बढ़ावा दे सकें। पहली चीज़। दूसरी चीज़ याद रखेंगे स्मृति ईरानी जी के द्वारा बिजनेस 20 ग्लोबल इंस्टीट्यूट, B20 ग्लोबल इंस्टीट्यूट को यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की बात की गई। तीसरा, हम जानते हैं कोविड-19 आया, राइट, हम इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। लॉकडाउन हुआ, कितनी जॉब लॉसेस गई, लोगों की जानें गई, इकोनॉमी पे कितना ज़्यादा इंपैक्ट बढ़ा। तो सिमिलर काइंड का सिनेरियो फ्यूचर में ना हो सके एंड हम उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रह सकें, तो यहाँ पर एक डिस्कशन हुआ ऑन टाइटल जो था प्रिपेयरिंग फॉर डिजीज एक्स। डिजीज एक्स क्या है? एक हाइपोथेटिकल डिजीज थी कि फ्यूचर में अगर कोई डिजीज आती है तो से फॉर एग्जांपल इट इज डिजीज एक्स, उसके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर हो सकें, उसके लिए पहले से ही लीडर्स एक प्रॉपर प्लानिंग कर सकें उस आउटब्रेक के लिए, ताकि कोविड-19 जैसा सिनेरियो फ्यूचर में ना आए। इसीलिए यहाँ पर ये एक सबमिट की गई, एक यहाँ पे डिस्कशन भी की गई इसके ऊपर। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो चेयरमैन कौन रहेंगे? फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन प्रोफेसर क्लॉस श्वाब, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, मैनेजिंग डायरेक्टर सादिया जाहिदी। इसको एस्टेब्लिश किया गया 1971 में। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस। इन्होंने लॉन्च किया आई सेलेक्ट गारंटेड फ्यूचर प्लस। ये एक आपका नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, राइट। ये जो पॉलिसी है ये ऑफर करती है 4 डिफरेंट प्लान्स, नेमली एंडाउमेंट ऑप्शन, रेगुलर इनकम ऑप्शन, अर्ली इनकम ऑप्शन एंड लॉन्ग टर्म इनकम विद रिटर्न्स ऑफ प्रीमियम ऑप्शन। मिनिमम एंट्री एज कोई भी नहीं है, आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 साल का आदमी भी स्टार्ट कर सकता है। मैक्सिमम एंट्री एज हो जाएगी 65 ईयर्स। मैच्योरिटी जो कि मिनिमम एज है 18 साल तक आप इसको मैच्योर करा सकते हैं, एंड जो मैक्सिमम एज रहेगी मैच्योरिटी की वो है 99 ईयर्स। ठीक है। यहीं पे अगर कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? अनुज माथुर। हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में रहेगा और इसको 2008 में स्टैब्लिश करा गया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है सेबी ने एक्सटेंड कर दी डेडलाइंस फॉर लिस्टेड एंटिटीज टू वेरीफाई मार्केट रूमर्स। देखो एक चीज याद रखेंगे, जो मार्केट रूमर्स है ना, जो टॉप 100
फर्म्स हैं लिस्टेड, उनको बोला गया कि वो पहले एक फर्स्ट 1 अक्टूबर 2023 से इनको बोला गया था कि जो भी, देखो सबसे पहले ऐसे समझो, मार्केट में क्या होता है कई बार कि एक रूमर फैल जाता है कि सो एंड सो के में ना कुछ इन्वेस्टमेंट आने वाली है किसी स्टॉक में एंड वो बढ़ जाएगा, लेकिन वो रूमर होता है एंड काफ़ी सारे लोग वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं एंड फिर देखते हैं कि वो मार्केट डंप हो जाता है, मार्केट गिर जाती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, इन्वेस्टर्स का काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। तो ऐसी सिचुएशन, या फिर दूसरे केस में भी देखिए कि न्यूज़ आ गई मार्केट गिर रही है लेकिन वो गिरती नहीं है, वो उठ जाती है। तो ऐसे रूमर से मार्केट मैनिपुलेट ना हो सके, एंड जिस कंपनी का भी मार्केट में रूमर आया है उनको 24 आवर्स के अंदर यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म पर उनको नोटिफाई करना होता है इन्वेस्टर्स को कि क्या ये मार्केट में रूमर ठीक है या नहीं, उसको वेरीफाई करना होता है विद इन 24 आवर्स, राइट। तो इसी के लिए पहले जो डेडलाइन थी ना वो 1 अक्टूबर 2023 सेट करने की बात की गई थी, लेकिन फिर इसके बाद उसको बढ़ा के 1 फेब कर दिया गया 2024, और उसको वापस से अब बढ़ा के सेकेंड टाइम इसको बढ़ाया गया। अब क्या डेट कर दिया, 1 जून 2024 यहाँ पे डेडलाइन कर दिया कि इनको 24 घंटे के अंदर यहाँ पर बताना होगा जो भी मार्केट रूमर होगा, राइट। तो मार्क करके चलेंगे, आप देख सकते हैं इनिशियली इट वाज सपोज टू बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 23 फॉर टॉप 100 फर्म्स और 1 अप्रैल 2024 से टॉप 250 फर्म्स के लिए। दिस वाज एक्सटेंडेड टू 1 फेब एंड 1 अगस्त रिस्पेक्टिवली, एंड राइट मार्क करके चलेंगे इसको। अगर सेबी की बात करूं, मधाबी पूरी बग यहाँ की चेयरपर्सन रहेंगी, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, एंड इसको 12 अप्रैल 1992 में इस्टेब्लिश किया गया। मूविंग ऑन, किस ऑर्गेनाइजेशन को अभी अप्रूवल मिला फ्रॉम आरबीआई टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है कि जो पैसे रिसीव कर सकता है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं पेटीएम की बात करूं, पेटीएम क्या है कि मर्चेंट्स के बिहाफ पे ये पैसे रिसीव करते हैं ताकि उनके पेमेंट अकाउंट में डायरेक्टली जा सके, राइट। हर वेंडर के पास आप देखेंगे पेटीएम का बार कोड होता है, तो वो पैसे को स्कैन करते हैं, वो क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं एंड फिर वहां से वो उनके अकाउंट में पैसे भेज देते हैं। तो वो पैसे को एग्रीगेट कर रहे हैं, राइट, पेमेंट्स को एग्रीगेट कर रहे हैं। तो सिमिलरली जोमेटो भी एज अ पेमेंट एग्रीगेटर का काम कर पाएगा अब, और इसके लिए अप्रूवल इनको मिल गया फ्रॉम आरबीआई, राइट। 24 जनवरी 2024 से ये पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे काम कर पाएंगे। इसी के अलावा एक और कंपनी है जिसको भी रिसेंटली आरबीआई ने अप्रूवल दिया टू ऑपरेट एज एन पेमेंट एग्रीगेटर, वो रहेगी स्ट्राइप इनकॉर्पोरेशन, राइट। ये कैलिफोर्निया यूएसए बेस्ड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर कंपनी है स्ट्राइप, और ये 15 जनवरी से एज अ पेमेंट एग्रीगेटर वर्क कर रही है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हु हैज बीन ऑनर्ड विद फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड। तो किनको फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो है इंडियन लॉयर अजीत मिश्रा। इंडिया एंड लंदन, इन दोनों के बीच में जो इन्होंने बिजनेस रिलेशंस को डेवलप किया है, राइट, बिजनेस पार्टनरशिप्स डेवलप करी हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए इनको इंडियन लॉयर अजीत मिश्रा को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित करा गया। लंदन यूके में ही इनको सम्मानित किया गया था, मार्क करके चलेंगे। एंड अजीत मिश्रा ये फाउंडर है एंड चेयरपर्सन है ऑफ यूके इंडिया लीगल पार्टनरशिप के। ये ड्यूल क्वालिफाइड लॉयर है, इंडियन लॉयर भी हैं एंड यूके में भी ये प्रैक्टिस करते हैं अपना, करेक्ट। और इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो उन्होंने रिलेशन डेवलप किया है, बिजनेस रिलेशनशिप्स डेवलप किए हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए इनको यहाँ पे द फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है अजीत मिश्रा। मूविंग ऑन, विच इंडियन क्रिकेटर वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वार्नी। वार्नी क्या है, ये एक प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड है, राइट। एंड वार्नी ने किनको अपॉइंट किया एज देयर ब्रांड एम्बेसडर, वो है रविंद्र जडेजा, मार्क करके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक पर। अभी रिसेंटली इंडियन नेवी ने टेस्ट किया एक्सटेंडेड रेंज ऑफ द वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया, इसका एक्सटेंडेड रेंज टेस्ट की। पहले जो ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज होती थी ना वो 290 किलोमीटर के करीब थी, और इसकी जो एक्सटेंडेड रेंज है अब 450 से लेकर 500 किलोमीटर तक इसकी रेंज रहेगी। फिर याद रखेंगे फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे ये वर्क करती है। फायर एंड फॉरगेट मतलब आप इसको लॉक कर दो एक टारगेट पे एंड ये उस टारगेट पे जाके हिट करेगी, चाहे वो टारगेट इधर उधर मूव क्यों ना कर रहा हो। एक और चीज़ याद रखेंगे, इसको ये एक जॉइंट वेंचर रहेगा। जो ब्रह्मोस मिसाइल अगर आपको याद हो, इंडिया और रशिया के द्वारा मिलके इसको डेवलप किया गया था, एंड
इवन इंडिया से, और हम बात कर रहे हैं जैसे डिफेंस में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रहे हैं हम, तो सिमिलरली इंडिया से ब्रह्मोस सुपरसोनिक प्रोक्योर करने वाली वो पहली कंट्री कौन बन गई थी जिन्होंने इंडिया को ठेका दिया था कि आप हमारे लिए ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल बनाओ और हमें डिलीवर करो, तो वो है फिलीपींस। ये भी मार्क करके चलेंगे, ठीक है। इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी ने इसको टेस्ट किया भी, एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल को। इंडियन नेवी की बात करें तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन रहेंगे, एडमिरल आर हरि कुमार, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स पर, तो ब्रिस्बेन हीट ये क्रिकेट टीम का नाम है। इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग को जीत लिया। जैसे इंडिया में आईपीएल होता है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग होता है, एंड उस बिग बैश लीग टाइटल को किसने जीत लिया है, ब्रिस्बेन हीट क्रिकेट टीम ने उसको यहाँ पे जीत लिया है। और ये जो बिग बैश लीग था ना, इसका यहाँ पर 13th एडिशन हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑबिट्री। इटली के टॉप गोल स्कोरर लुइजी रिवा, इनका रिसेंटली निधन हो गया है, राइट। इटली सार्दिना में इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 79। नेक्स्ट बुक्स एंड ऑथर्स पर आते हैं, तो अमित शाह के द्वारा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे, अमित शाह जी के द्वारा यहाँ पर एक बुक रिलीज की गई जो कि ब्रेल स्क्रिप्ट में ये बुक थी। ब्रेल स्क्रिप्ट होता है जो कि आपके विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, जो ब्लाइंड लोग होते हैं, उनके लिए ये बुक होती है, राइट, ताकि वो लैंग्वेज होती है ताकि समझ सके ब्रेल स्क्रिप्ट, राइट। तो अमित शाह के द्वारा एक बुक रिलीज की गई, बुक का नाम है अ प्रॉमिस्ड नेशन, ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी द मेकर ऑफ न्यू इंडिया। इस बुक को रिलीज किया गया, ब्रेल स्क्रिप्ट में रिलीज किया गया, अमित शाह के द्वारा रिलीज किया गया, राइट। मार्क करके चलेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है ये, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रेल स्क्रिप्ट में एक अभी बुक रिलीज की गई थी अमित शाह जी के द्वारा, उस बुक का नाम बताओ, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज, इंटरनेशनल कस्टम्स डे 26 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। कस्टम्स क्या होता है, जो रोल ऑफ ऑफिशियल्स, कस्टम्स एजेंसीज जो कि एयरपोर्ट पर बॉर्डर सिक्योरिटी पर वर्क करते हैं, ताकि जो फ्लो है गुड्स का एक दूसरे से दूसरी कंट्री में, उसको रोका जा सके, इलीगल फ्लो को रोका जा सके एंड लीगल फ्लो को कंटिन्यू किया जा सके। कब ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल कस्टम्स डे, 26 जनवरी को। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ हॉलोकॉस्ट 2024 में ये ऑब्जर्व किया गया 27 जनवरी को, राइट। इसको इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे के नाम से भी जानते हैं। एंड जिन लोगों ने हॉलोकॉस्ट के दौरान अपनी लाइफ गंवा दी थी, उनको ऑनर करने के लिए उनकी मेमोरी में ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर। विंग्स इंडिया हम देखें, ये क्या है, एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। देन पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किए प्रोजेक्ट्स वर्थ 19,100 करोड़ रुपीज इन बुलंदशहर यूपी। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड लेडी अर्बन कॉलेज, इन्होंने रिन्यू किया एक एमओयू जो कि 5 साल के लिए रिन्यू किया फॉर रोशनी स्कीम। रोशनी को फंड कौन कर रहा है, यूनिसेफ फंड करता है, राइट। रूरल एरिया में डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की गई, वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, इसके ऊपर काम करने की बात की गई। देन डेवोस समिट हुई थी, 54th एडिशन था इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट का, जिसको डेवोस समिट भी कहते हैं। डेवोस स्विट्जरलैंड में हुई। देन कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया आई सेलेक्ट गारंटीड फ्यूचर प्लस प्लान। सेबी ने एक्सटेंड कर दी डेडलाइन फॉर द लिस्टेड एंटिटीज टू वेरीफाई मार्केट रूमर्स। देन जोमेटो पेमेंट, इनको अप्रूवल मिल गया कि ये आरबीआई से इनको अप्रूवल मिल गया कि ये ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर की तरह काम करेंगे। देन इंडियन लॉयर अजीत मिश्रा, इनको ऑनर किया गया फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से। नेक्स्ट इंडियन क्रिकेटर रविंद्र जडेजा, इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया वार्निका, जो एक प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है। देन इंडियन नेवी, इन्होंने टेस्ट की एक्सटेंडेड रेंज ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रिस्बेन हीट क्रिकेट टीम, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग को जीत लिया है और ये 13th एडिशन था बिग बैश लीग का। देन इटली के टॉप गोल स्कोरर लुइजी रिवा, इनका निधन हो गया। अमित शाह ने एक बुक रिलीज की जो कि ब्रेल स्क्रिप्ट पे बेस्ड है, वो है अ प्रॉमिस नेशन, ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी द मेकर ऑफ न्यू इंडिया। देन इंटरनेशनल कस्टम्स डे 26 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है एंड इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन द मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ हॉलोकॉस्ट 27 जनवरी को। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो ये 2 चीज़ ज़रूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि डेली बेसिस पे आपके लिए मैं बेटर कंटेंट ला सकूं। तो अब चलते हैं दोस्तों हम अपने रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपके लर्निंग में बहुत हेल्प करेगा। किस कंपनी ने रिसेंटली, या विच कंपनी हैज़ रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन ज्वेलरी ब्रांड जिन्होंने ओएनडीसी नेटवर्क को भी ज्वाइन किया, वो है सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स, राइट। ये वो पहला
गोल्ड ज्वेलरी ब्रांड बन गया जिन्होंने ओएनडीसी पे भी रजिस्टर किया है। अगर आप पेटीएम यूज़ करते हैं तो आप देखते हैं जब भी आप स्कैन का ऑप्शन दबाते हैं तो साइड में यहाँ पे ओएनडीसी लिखा होता है, तो ये भी आपका एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही है। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल या फाउंडेशन इन्होंने रिसेंटली साइन किया एक ट्राईपार्टाइट एमओयू NFWPIS के साथ, ताकि जो एआई का यूज़ है एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको बढ़ाया जा सके। एआई के यूज़ को, मशीन लर्निंग को, ड्रोन्स को, सेंसर्स को, आईओटी डिवाइसेस को, राइट, इनको यूज़ करके जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बढ़ावा दिया जा सके एंड फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना देने के लिए यहाँ पे एक ट्राईपार्टाइट एमओयू साइन हुआ है। ट्राईपार्टाइट मतलब 3 ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया एआई, वाधवानी फाउंडेशन, इन्होंने एमओयू साइन किया किसके साथ मिलके? NFWPIS के साथ। नेक्स्ट, इन जनवरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज किया 6 स्पेशल कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स डेडिकेटेड टू श्री राम जन्मभूमि टेम्पल इन डैश। तो कहां पर रहेगा ये श्री राम जन्मभूमि टेम्पल? तो ये अयोध्या यूपी में है। ठीक है। नेक्स्ट, और यहीं पे जो कमेमोरेटिव स्टैंप लॉन्च किए गए ना, 6 ऐसे कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप यहाँ पे लॉन्च किए गए। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली फ्यूचर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा एक स्टेटिस्टिक्स पब्लिश किया गया अबाउट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया दैट एनएससी एमर्ज करके आया एज द वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज इन 2023 इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड फॉर 5th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। 5वीं बार लगातार एनएससी ने टॉप किया एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज इन द नंबर ऑफ इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। एंड वहीं पर एनएससी इसकी रैंक रही 3rd इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ द इक्विटी सेगमेंट, राइट, बाय द नंबर ऑफ ट्रेड्स। नेक्स्ट, किस बैंक ने या ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली 486 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए इन सेट? SEIT। सीट क्या है? सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। ये एक तरीके का बॉन्ड्स होते हैं, जैसे ही आपका रीट्स हो गया रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के तौर पर, सिमिलरली यहाँ पे SEIT हो गया सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। बॉन्ड की तरह यहाँ पे पैसा रेज किया गया, 486 करोड़ रुपीस रेज किया गया। प्रोजेक्ट मेरिडियन जो कि इंडिया का प्रोजेक्ट रहेगा, इसके अंडर लॉन्च किया गया। तो किसने इन्वेस्ट किया ये 486 करोड़ रुपीस? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने यहाँ पे ये पैसा इन्वेस्ट किया। Next, in January, RBI's Economic Activity Index has nowcast India's GDP at 7% for the 3rd quarter, जो कि है अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023 के लिए। नेक्स्ट, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्म की एक हाई लेवल कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डैश, जो कि एग्जामिन करेगी द वेरियस प्रोटेक्शन राइट्स ऑफ द मोस्ट डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स ऑफ शेड्यूल कास्ट। जो शेड्यूल कास्ट हैं, इनको जो इनके राइट्स हैं, राइट, उनका जो शोषण हो रहा है, राइट, इनको प्रॉपर अपने राइट्स प्रोवाइड कराने के लिए, करेक्ट, इनकी लाइफ को और बेटर करने के लिए ये एक हाई लेवल कमेटी फॉर्म की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। पूछा जा रहा है कि इस कमेटी के जो चेयरमैन है वो कौन रहेंगे? तो वो राजीव गौबा रहेंगे। नेक्स्ट, स्पेसएक्स के रॉकेट फैल्कन 9 के द्वारा अभी AX3 मिशन, AX3 क्या है? एक्सिम मिशन 3, इसको लॉन्च किया गया। इन्होंने टर्की के एक एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ये लेके गए, और ये पहला एस्ट्रोनॉट है फ्रॉम टर्की जिनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ले जाया गया फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से। एंड AX3 क्या है? एक्सियोम मिशन 3 इसका नाम रहेगा। नेक्स्ट, डैश बिकेम द सेकेंड इंडियन मैन टू विन गोल्ड एट द एशियन मैराथन चैंपियनशिप। तो वो है मान सिंह, ये वो सेकेंड इंडियन बन गए हैं जिन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता एट एशियन मैराथन चैंपियनशिप। ठीक, इससे पहले कौन थे? गोपी थोनाकल, इन्होंने 2017 में जीता था, राइट, और ये पहले मैन थे। और दूसरे कौन बन गए हैं? मान सिंह। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिसको रिसेंटली अवार्ड किया गया विद सदर्न रीजन नराकाज ऑफिशियल लैंग्वेज अवार्ड फॉर 2022-23। तो वो है BDL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, राइट। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड अलॉन्ग विद सदर्न रीजन was awarded with the Southern Region Naraka's Official Language Award for 2022-23. Next, name which country recently elected as the first vice chair of subcommittee on fisheries management of UNFAO Committee on Fisheries। तो ये है हमारी इंडिया, 2 साल के लिए यहाँ पे इलेक्ट की गई है। एंड यहाँ पे जो इंडियन डेलीगेशन कौन थे जिन्होंने यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया?
जे बालाजी, और जे बालाजी यहाँ पे इलेक्ट किए गए हैं एज द फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन ऑफ द इनकमिंग ब्यूरो ऑफ SCFM, जो कि है सब कमिटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट, और ये इस पोजीशन पे 5 साल के लिए रहेंगे। नेक्स्ट, विच स्टेट्स कचाई खरेक हैज रिसेंटली गॉट GI टैग फ्रॉम द जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। तो ये कचाई खरेक, ये बेसिकली क्या होते हैं, डेट्स, खजूर, राइट, और ये किस स्टेट को मिला है कचाई खरेक के लिए GI टैग, तो गुजरात को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, किस IIM ने अभी कोलैबोरेट किया विद द स्ट्रेटजी पर्सपेक्टिव प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कमिटी ऑफ द ICAI, ताकि ये ICAI विजन 2049 को डेवलप किया जा सके। एंड इस विजन 2049 से ICAI एक लीडिंग प्लेयर बनना चाहती है इन द अकाउंटेंसी, राइट। तो यहाँ पे याद रखेंगे IIM अहमदाबाद ने ICAI के साथ टाइप किया ताकि ICAI विजन 2049 को डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द विजिट ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर S जयशंकर टू ईरान, फारसी लैंग्वेज हमारी कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज बन गई है, तो फारसी हमारी 9th क्लासिकल लैंग्वेज बन गई है, और ये 8th शेड्यूल में क्लासिकल लैंग्वेजेस का जिक्र किया गया है। ठीक, फारसी 9th क्लासिकल लैंग्वेज मार्क करेंगे। नेक्स्ट, इन जनवरी डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू एग्जीक्यूट एन एक्सपोर्ट फाइनेंस ट्रांजैक्शन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विस प्लेटफॉर्म ऑफ RIXL ग्लोबल IFSC लिमिटेड। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन सा बैंक बन गया है, तो वो है आपका, क्या नाम रहेगा उसका, वो है येस बैंक। ठीक है। नेक्स्ट है चेयरपर्सन ऑफ सेबी मदाबी पूरीपक, इन्होंने 2 यूनिक फीचर्स लॉन्च किए। एक तो कि आप अपनी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट को किसी भी लैंग्वेज में, मल्टीपल लैंग्वेजेस में यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, पहली चीज़, राइट। दूसरी, यहाँ पर एक बड़ी सहायता 24/7 चैटबॉट लॉन्च किया गया कि किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो कस्टमर केयर पे यहाँ पे इस चैटबॉट पर बात कर सके, राइट। पूछा जा रहा है कि चेयरपर्सन ऑफ सेबी ने लॉन्च किए 2 सर्विसेज फॉर किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड CDSL के लिए यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, नेम द न्यू इंडिविजुअल सेविंग डेफर्ड एन्युटी प्लान, जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया बाय LIC। तो उस प्लान का नाम क्या है, उस एन्युटी डेफर्ड एन्युटी प्लान का, वो है जीवन धारा 2 प्लान 872, ये इस प्लान का नाम रहेगा। और ये जो प्लान है अवेलेबल होगा फॉर सेल फ्रॉम 22 Jan 2024। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम को इन्होंने कन्फर किया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 टू हाउ मेनी चिल्ड्रन, तो 19 बच्चों को यहाँ पे दिया गया, जिसमें से 10 गर्ल्स थी और 9 बॉयज थे। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ शस्त्र सीमा बल, तो शस्त्र सीमा बल के अभी रिसेंटली डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए, वो है दलजीत सिंह चौधरी। ये किनको रिप्लेस करेंगे, रश्मि शुक्ला को इन्होंने रिप्लेस किया, जो डायरेक्टर जनरल की पोस्ट पे सर्व कर रही थी ऑफ शस्त्र सीमा बल, करेक्ट, फ्रॉम मार्च 2023 से जनवरी 2024 तक। और अब कौन बन गए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ शस्त्र सीमा बल, दलजीत सिंह चौधरी। नेक्स्ट, जाक्सा के द्वारा अभी इनका स्लिम क्या है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून, राइट, इसको लैंड किया गया ऑन द लूनर सरफेस, मतलब मून पे लैंड किया गया। तो इससे इनकी लैंडिंग के बाद जापान 5th नेशन बन गया है इन द वर्ल्ड जिन्होंने सॉफ्ट लैंड किया ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ये पूछा जा रहा है। और जाक्सा स्पेस एजेंसी है कहाँ की, जापान की, जैसे इसरो है इंडिया की। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया सोराया सैटेलाइट यूजिंग 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल क्वेम 100 सैटेलाइट कैरियर, तो ईरान के द्वारा ये सोराया सैटेलाइट लॉन्च किया गया। याद रखेंगे, नाम पूछा जाएगा, सोराया सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, लॉकटॉन, इन्होंने अनाउंस किया देयर एंट्री इनटू द इंडियन मार्केट। लॉकटॉन है क्या, बेसिकली ये एक इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस ब्रोकरेज फर्म है। इन्होंने अपनी एंट्री इंडिया में लॉन्च की विद द अपॉइंटमेंट ऑफ संदीप दादिया एज द CEO ऑफ इंडिया एंड मेंबर ऑफ द लॉकटन एशिया लीडरशिप टीम का। ठीक है, संदीप दादिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड होल टाइम डायरेक्टर ऑफ जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, तो तरुण खुलबे, इनको अपॉइंट किया गया है एज द CEO एंड होल टाइम डायरेक्टर ऑफ जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, राइट, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला,
फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये एक रिपोर्ट रिलीज की गई किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा। दूसरा, फॉर वेयर वॉज द 44th ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी हेल्ड। तीसरा, रिसेंटली इंडिया ने सरपास किया किस कंट्री को टू बिकम द 4th लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट ग्लोबली। फिफ्थ और फोर्थ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखना बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत करेंगे। बीएसएफ किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। और फिफ्थ, ज़ॉम्बी वायरस रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। इवन इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ, कजन्स के साथ, रिलेटिव्स, नेबर्स, सबके साथ शेयर कर दो ताकि उन्हें भी पता लग सके अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म अफेयर्स क्लाउड, जहां पर हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं ताकि आप डे टू डे अपडेट रह सके। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.